एजेंसियों को खुश कर रहे हैं, आप लोग आसिम मुनीर को खुश कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ नहीं वादा किया ना अल्लाह ताला ने जिंदगी मौत का डरना क्यों वो मर्दी क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। श्रीलंका देख लो, बांग्लादेश देख लो, बेशर्म लोगों निकलो अपने हक की खातर, इन लोगों के हल्क से अपना हक छीन लो। मैं उसके सूबे में खड़ा होकर कहता हूँ कि गंडापुर के पीछे हम आजादी नहीं ले सकते, हम इमरान खान की राय नहीं ले सकते जो अडयाला जेल के बाहर भी जाते हुए डरते हैं, जिसके हम उनसे अच्छे नहीं है जो 26 नवंबर को इस दुनिया से चले गए, वो भी हमारे भाई थे, उन्होंने सीने पे गोलियां खाई है, हम भी चाहते हैं हमें मारे गोलियां, कितनी मारेंगे, इनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे, या डर जाओ या हार जाओ। जी नाजरीन, इस वक्त मगरिब की अजान हो चुकी है और अंधेरा छाने वाला है, यहाँ पे लाइटें लग चुकी है और बाहर लोग जो है वो अभी भी बाहर मौजूद है, दरगाह जो है वो अंदर से भर चुकी है और जो बाकी लोग हैं वो बाहर मौजूद है। यहाँ पे मौजूद एक शख्स से बात करेंगे पीटीआई के कारकुन से, वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से आप? मैं फैसलाबाद तहसील जड़ावाला से हूँ। किस जज्बे के साथ आए? जज्बे के साथ, इस जज्बे के साथ आया हूँ कि ये जो सब ड्रामा कर रहे हैं ना लीडरशिप, इधर आके जलसा कर रही है, इन लोगों को साथ लेके अडयाला जेल जाए तो खान को रिहा करवाएं। वो कहते आ सच्चियां गल्लां करिए तो घर नहीं वसदे, ठीक हो गया, ते घर उजण जां वसण ਅਸੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਖਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਪੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਯਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਤਾ ਲਾ ਤਦਾਦ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਐਮਐਨਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਸੈਨੇਟਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ? ਵਾਮ ਗਰੀਬ ਮਰੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਿਆ, ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਰਿਆ, ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ। ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਵੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਐਮਪੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਰਨ ਕੌਣ ਡਿਆ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਤ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਅੱਗੇ ਆਪ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚੋਰ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਪਾਏ ਆ? पता यहाँ पर आपको बताऊं कि एक खामी तो अवाम में भी है, अवाम की नजरों के सामने सब कुछ हो रहा है, फिर भी सिर्फ तनकीद ही कर रहे हैं, अमली कदम कुछ नहीं उठा रहे, मतलब खुद तहरीक नहीं चला रहे, खुद बाहर नहीं इस तरफ अडयाला की तरफ चल पड़े। तो अवाम में भी खामियां है, सिर्फ लीडरशिप को आप इस इल्जाम का नहीं दे सकते। भाईजान अवाम च सब तो वड्डी खामी आ भी देखो ना, एक बंद मीटर का बिल 1500 आ रहा गैस का, ठीक हो गया, ते बिजली का ओदा कोई हिसाब ही ना लाओ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਡਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੂਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ 90% ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਵੇਚ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੇਲੀ ਵੇਚ ਦੇ, ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਡਏ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਆ, ਡਰਪੋਕ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੂ मार दू। वादा किया ना अल्लाह ताला ने जिंदगी मौत का, ते डरना क्यों? वो मर्दी क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। पर नहीं यार लोग नहीं समझणगे। मैं जड़ाले तो आया वां, मेरे नाल कोई 15 तो 20 बंदे आए आ जेड़े मसलन इलैक्शन लड़िया 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਮਕਸਦ जिन्नी देर तक नजरियाती वर्कर इमरान खान का अगे ना आया, इमरान खान कोई दुनिया की ताकत बाहर नहीं कढ़ा सकती। आपका क्या ख्याल है, कब तक ये ड्रामे चलते रहेंगे, कब तक ये कौम किसी और की तरफ देखते रहेंगे? ड्रामे यार ये 75 साल से चल रहे हैं,
तो उन लोगों को इस चीज का फर्क पड़ता है, ड्रामा चले, फिल्म चले, वो तो अपने फ्लैटों में बैठे हैं, मर ये रहा है, मर ये रहा है, मर वो रहा है, ये गरीब आदमी मर रहा है, दूसरे को क्या खबर। लेकिन ये जब तक गरीब आदमी बाहर नहीं निकलेगा ना, बात नहीं बनेगी यार। श्रीलंका देख लो, बांग्लादेश देख लो, बेशर्म लोगों, निकलो अपने हक की खातर, इन लोगों के हल्क से अपना हक छीन लो। जब तक ये गरीब नहीं निकलेगा, ये जो बैठे हुए हैं ना, जैसियां कर रहे हैं, इनको पकड़ो, इनका गिराव करो। कोई कहता है केपीके की जो लीडरशिप है ना वो गद्दार है, कोई कहता है सिंध की लीडरशिप वो गद्दार है, कोई कहता है पंजाब की लीडरशिप वो गद्दार है। मेरी नजर में सब के सब गद्दार है। मैनू नोट विखा, मेरा मूड बने, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਆਵਾਮ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਚਦੇ ਆ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੈਰਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਮੇਰੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ? ਬਸ ਡਰਦੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਆ, कुत्ते की जिंदगी जीन रहे आ, यकीन करो, लेकिन बाहर नहीं निकलते, डरते आ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे जी? किस हवाले से आप बताएं? जलसे के हवाले से क्या जज्बा रखते हैं आप? देखिए, मेरा जज्बा ये है कि मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर पाकिस्तानी का जज्बा है। जिस तरीके से आज लोग निकले हैं और बगैर लीडर के ये जलसा हो रहा है, हम कहते हैं कि 13 जमाती की लीडरशिप इकट्ठी होकर इसके 3 हिस्से जितना जलसा कर दे, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दूंगा। हम नजरियाती लोग हैं, हम किसी लीडर के लिए नहीं आए, सिर्फ इमरान खान के लिए आए। ये हमारा नजरिया है, आप दिखाएं। हम आपको पता है कि बहस होती है कि ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। जिस तरीके से मरियम नवाज और उसके चहेते बिलावल भुट्टो और उसके चहेते कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है, तो हम कहते हैं टीवी एंकरों को, हम कहते हैं एयरवाई को, हम कहते हैं आप आए, दिखाएं ये क्राउड। क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप हारी की आवाज क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप मजदूर की आवाज क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप नौजवान की आवाज क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप आम पाकिस्तानी की आवाज क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप चारों सूबों की आवाज क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप क्यों इतने बेरहम हो चुके हो, इतने बेइस हो चुके हो कि जब हमारा लीडर खड़ा होता था वो कहता था मेरे पाकिस्तानियों, वो बलोचिस्तान में जाता था, वो वजीरिस्तान में जाता था, वो फाटा में जाता था। बाहर निकालो खान हमारा, बोले यार एक ही मकसद है, एक ही नारा, एक ही मकसद है, एक ही नारा, तेरा यार मेरा यार, इमरान खान, तेरा यार मेरा यार, ना वो बागी ना गद्दार। देखिए जिस तरीके से वो गिलगित में जाता था, वो कश्मीर में जाता था, वो कहता था मेरे पाकिस्तानियों, आज तरस गई है, ये कान तरस गए ये बात सुनने को कि इनमें से इन 13 जमातों में से कोई लीडर खड़ा हो और कहे मेरे पाकिस्तानियों। ये जाग पंजाबी जाग का नारा लगाने वाले, ये सिंधु देश का नारा लगाने वाले, ये बलोचिस्तान को अलहदा करने वाले, हम इनसे पूछते हैं क्या आपको पाकिस्तान कायदे आजम ने इसलिए दिया था? एक और बात जो मैं आपसे कहूं कि जाग उठा है आप कश्मीरी। आपने देखा इन वडेरों को, इस इंपोर्टेड सरकार के एहलकारों को इंशाल्लाह 29 सितंबर को हमारे वो मर्द मुजाहिद कश्मीरी निकाल के घरों से बाहर फेंकेंगे। आज आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने इनको मजबूर किया है कि एक दिन के अंदर आवाज दी और इन्होंने 38 मुतालबात पूरे किए। अभी 2 मुतालबात और कम है जिनके ऊपर पूरा कश्मीर बंद है। वो कहते हैं ऑन करके देखो, क्योंकि अवाम जाग चुकी है, क्योंकि अवाम के अंदर शऊर आ चुका है। हमारे कश्मीरियों ने डट के मुकाबला किया है इनका, इनकी चीखें निकाली है और इंशाल्लाह नेपाल के बाद, बांग्लादेश के बाद अब बारी कश्मीर की है और 29 सितंबर को कश्मीर आजाद करवाएंगे इन इंपोर्टेड सरकार से। और उसके बाद हम कदम रखेंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ऊपर, जिसका ख्वाब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, जिसको जोड़ने के लिए मर्द मुजाहिद इमरान खान खड़ा हुआ था, जिसने चारों सूबों को जोड़ा था। आज आप देखें चारों सूबों के अंदर आग लगी हुई है, आज चारों सूबों के अंदर लोग बेरोजगार हैं, आज चारों सूबों के अंदर दहशतगर्दी अरूज के ऊपर है, आज चारों सूबों के अंदर ये पेशावर, वो तिराह,
वादी तिरा मेरा आबाई गांव है, मैं यहाँ से माइग्रेट होके कश्मीर गया हूँ। मेरी जबान तो बदल सकती है लेकिन मेरा खून नहीं बदला। जिस तरीके से बम धमाका हुआ, जिस तरह से रॉकेट मारे गए, जिस तरह से हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया गया, आप मुझे ये बताएं क्यों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वो नहीं चलाया इसके ऊपर? क्यों इन्होंने नहीं बताया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है? खुल के बताओ। इसके पीछे छोड़ दिए। आप मुझे ये बताओ, ये मासूम बच्चे, 2 साल का दूध पीने वाला बच्चा दहशतगर्द है और उसको मारने वाला क्या है? क्या वो दहशतगर्द नहीं है? 4 सालों में यहाँ कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, 4 सालों में यहाँ टारगेट किलिंग नहीं हुई, 4 सालों में यहाँ पे मिसाइल नहीं गिराए गए, 4 सालों में बॉर्डर वायलेशन नहीं हुई। आज क्यों हो रही है? हम पूछना चाहते हैं, हम इम्पोर्टेड सरकार से पूछना चाहते हैं। हाथ मिलाने से, ट्रंप को हाथ मिलाने से, लुड़ियां डालने से पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये तो इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान ने जाते जाते TTP क्या है उनसे मुआहदे किए, उनको दोबारा पाकिस्तान में आने दिया। तो इनके इल्जाम के बारे में आप क्या कहेंगे? आप मुझे ये बताओ कि इमरान खान से पहले फाटा, वजीरिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा थे? ये इमरान खान का कसूर है कि इमरान खान ने फाटा को भी जम किया है पाकिस्तान के अंदर, वजीरिस्तान को भी जम किया है। जब से पाकिस्तान बना है और बरसगीर के दौर से सिकंदर आजम ने ऐलान किया था मैं ये इलाका फतह करूंगा, वो भी वजीरिस्तान और काबुल को फतह नहीं कर सका, और उसने ऐलान किया था कि आज के बाद कोई भी इसको नहीं फतह कर सका, कोई भी फतह नहीं कर सकता। आप नॉलेज पढ़े, आप हिस्ट्री पढ़े, सिकंदर आजम ने ये कहा था कि मैं पूरी दुनिया को फतह कर सकता हूँ, काबुल और कंधार को फतह नहीं कर सकता। लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने, उस इमरान खान ने, जिसका नाम इमरान खान नियाजी है, जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, उसने फतह भी किया, वजीरिस्तान के अंदर जलसा भी किया और कामयाब भी किया और सीटें भी उठाई, असेंबली मेंबर भी बनाए, कौमी असेंबली मेंबर भी बनाए। आप उसको हाज तहसीन पेश करें। वो तकसीम नहीं कर रहा था, वो जम कर रहा था, वो मजबूत बना रहा था। उम्मत मुस्लिमा का इजलास एक बार जुल्फार अली भुट्टो ने बुलाया, हम उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं, बेहतरीन लीडर था, मार दिया। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने उसके जवाब में 2 मरतबा इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में बुलाई। क्यों नहीं बता रहे आज? क्यों नहीं बता रहे कि इमरान खान के दौर के अंदर महंगाई, इसमें कोई शक नहीं, जब महंगाई ऊपर बढ़ी तो खान ने कंट्रोल किया, 130 के ऊपर पेट्रोल था। आज कितने हैं पेट्रोल आप खुद देखें। आज घी किस तरह है। आज महंगाई के दौर के अंदर एक मजदूर क्या 25,000 15,000 रुपये में अपना घर नहीं चला सकता। तो हम कहते हैं, हम अपनी लीडरशिप से भी कहते हैं, खुदा यार खोश के नाहन लो, आखिर तुमने भी मरना है, तुमने भी इस दुनिया से जाना है। तुम्हें वो लीडर मिला है जिसके नाम के ऊपर तुम वोट लेके आए हो, जिसके नाम के ऊपर तुमने असेंबली के अंदर बैठे हो, जिसके नाम के ऊपर अभी स्टेचू के ऊपर तकरीरें कर रहे हो। ये स्टेज खत्म होना चाहिए, इनको नीचे बैठना चाहिए, उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जिन्होंने अपने सीनों के ऊपर गोलियां खाई है, जिन्होंने 26 नवंबर को अपने सीने दिए। ये नजरियाती कारकुनों का पाकिस्तान है, ये नजरियाती वर्कर का पाकिस्तान है, ये हारियों का पाकिस्तान है, ये मजदूरों का पाकिस्तान है, ये चोर और लुटेरों और डाकू का पाकिस्तान नहीं है। खान ने हमें समझाया है, अगर आपका लीडर गलत है ना, आप उसके खिलाफ खड़े हो, आप उसके खिलाफ जदोजहद करो, आप उसका एहतसाब करो। लेकिन आज मैं वर्करों से अपील करता हूँ, पूरे पाकिस्तान के वर्करों से, नजरियाती वर्करों से अपील करता हूँ, आप खड़े हो जाओ। कोई लीडर नहीं आया था नेपाल में इनकलाब लेके, कोई लीडर कश्मीर में भी इनकलाब लेके नहीं आ रहा, कोई लीडर भी श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर भी इनकलाब लेके, और तुर्की के अंदर भी किसी लीडर ने इनकलाब नहीं लाया था, अवाम ने लाया था। हमारे जितने भी लोग हैं, मैं पूरे पाकिस्तान से कहता हूँ, इनकलाब की जरूरत है। आज इनकलाब लाना चाहिए आपको, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। हमें गंडापुर की तरफ देखेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं उसके सूबे में खड़ा होकर कहता हूँ कि गंडापुर के पीछे हम आज़ादी नहीं ले सकते, हम इमरान खान की राय नहीं ले सकते, जो अडयाला जेल के बाहर भी जाते हुए डरते हैं, जिसके पास सिक्योरिटी गार्ड भी है, वजीर आला है, वो ऐलान करे इसी जलसे में। क्या लोगों आप खड़े हो कि आप जाना चाहते हो? हाथ खड़ा करो। ये देखें, कौम इनकलाब चाहती है, इनकलाब। सब खड़े, अभी ऐलान करे, ये गंडापुर ऐलान करे। हम अभी खड़े हैं,
ये जलसे का कल ऐलान करे, परसों खड़े हैं, ये ड्रामेबाजियां ना करें। हम कहते हैं हम खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खान के लिए खड़े हैं। हम मरेंगे, हम उनसे अच्छे नहीं है जो 26 नवंबर को इस दुनिया से चले गए, वो भी हमारे भाई थे, उन्होंने सीने पे गोलियां खाई हैं। हम भी चाहते हैं हमें मारे गोलियां, कितनी मारेंगे, इनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस जगह पे हम पंडाल में खड़े हैं, अगर ऐसे जगह हमें पंजाब में देता तो हमारा वज़ीर-ए-आला साहब क्या कहता कि ये पंजाब वालों ने दिया है हमें। इस तरह जगह पे लोग बेंच खड़े करते हैं। जिस जगह पे हमें बुलाया है, कितने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, कितने दूर दूर से लोग आए हैं, और हमारा वज़ीर-ए-आला साहब अगर स्टेज पर खड़े, यहाँ पे ये लोग धुआं की वजह से मर रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आला साहब ये करें कि यहाँ पे 30-40 अस्पताल बनवाए टीबी का, क्योंकि सब लोगों को टीबी मरज लग गया भाई। हम तो अभी चले गए, वज़ीर-ए-आला साहब जाने और उसके काम जाने से जगह पे लोग कुत्ते भी खड़े नहीं करते हैं, न बांधते हैं, न इस तरह जगहों पे लोग मंच खड़े करते हैं। जिस तरह हमें इस लोगों को बुलाए, सिंध से लोग आए, कितने खूबसूरत लोग आए, कराची से लोग आए, लाहौर से लोग आए। इनका मकसद ये है कि अभी इसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे लोग मंच मवेशियां भी खड़े नहीं करते। तो भाई हमारा सब गिला अपने ये वज़ीर-ए-आला साहब से, वज़ीर-ए-आला साहब खुदा के लिए कितने अवाम आपके पीछे है, अंदाजा लगाओ। इस अवाम का यही जगह है जिस तरह आपने लाया है, और जहाँ पे लोग मतलब है कि गंदगियां रखते हैं, और उसी जगह पे आपने मतलब है कि इंसानों को खड़ा किया है। धुआं की वजह से हम आगे जा नहीं सकते, न पानी चढ़का किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया। क्या इस लोगों को इसने अपने सूबे, अपनी हुकूमत में क्या रिलीफ दिया है, मुझे ये बताएं। तो भाई हमने ये जो बातें किया इसलिए क्या कि इमरान खान के लिए हम निकले हैं, लेकिन अगर गंडापुर की तरफ ये बात निकल जाए तो ये ना आजादी मानता है और ना ये इमरान खान को आजाद कर सकता है। वस्सलाम। शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुसूसन सीएम KPK गंडापुर साहब को पैगाम देना चाहूँगा कि आपने एक वादा किया था कि 90 दिन के बाद, 90 दिन के अंदर खान साहब को हम रिहा करवाएंगे। अगर हमने खान साहब को रिहा नहीं करवाया तो हम या सियासत छोड़ेंगे या खान साहब को रिहा करवाएंगे। आपके 90 दिन का वो टाइम पूरा हो चुका है। अपनी जुबान की पासदारी रखे और कौम और खासकर पख्तून कौम का नाक ना काटे। आप अपनी जुबान का पासदारी रखते हुए या तो यहाँ से आप इनकलाब का नारा बुलंद करते हुए इस्लामाबाद और अडियाला जेल की तरफ रवाना होंगे, और या यही स्टेज पर आपने इस्तीफा देना होगा और घर जाना होगा। हमें बुज़दिल क़यादत नहीं चाहिए, हमें कंप्रोमाइज क़यादत नहीं चाहिए। हमें कंप्रोमाइज और बुज़दिल लोगों से नफरत है। या डर जाओ या हार जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी बाबा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं सबसे पहले PTI के तमाम रहनुमाओं को, इमरान खान के मुजाहिद लोगों को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, तुम्हारे पास सलाहियत की कमी है। अगर तुम एक पिच पर होते, एक ग्राउंड पे होते, इकट्ठे होते, तुम्हारे इख्तलाफ आज न होते, इमरान खान 1 माह पहले रिहा हो चुका होता। ये सब तुम्हारे पे जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि आप लोग एजेंसियों को खुश कर रहे हैं, आप लोग आसिम मुनीर को खुश कर रहे हैं। खुदारा जो पाकिस्तान की कौम का मसीहा और मोहसिन, पाकिस्तानी कौम का दर्द रखने वाला कैदी नंबर 804 इमरान खान, उस पर रहम करे, इमरान खान पर रहम करें। और ये जो कौम है कशकौल उठा के लोगों के मुंह पे देख रही है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिम मुनीर, इनको बाहर के मुल्कों में मुंह की खानी पड़ रही है। इनको लोग धक्के दे रहे हैं और कहते हैं इनको कि आपकी औकात क्या है। जो जेल में है ना कौम का वजीर आजम वो है। आप हमारे पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले कराएं, आप अपने शहरियों को मराएं, फौजी ऑपरेशन कराएं, फिर हम आप पर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी नहीं करेंगे, आपको डॉलर भी देंगे। और जो सच्चे मुसलमान लोग हैं उनको
कत्ल कराएं, पाकिस्तान में खून रेजी हो, इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता। मैं अपने PTI के तमाम MP MNA वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब से खास कर मुखातिब हूँ, खुदारा इस पाकिस्तानी कौम पर रहम करे और आप अपने इख्तलाफात खत्म करके कैदी नंबर 804 की रिहाई का सोचें और कौम की मुआशी जो हालत है इस वक्त पाकिस्तान, अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान की मुआशी हालात घुटनों पे हैं। पाकिस्तान गुलामी दर गुलामी में चला जाएगा। हमारे आबा अजदा का रिकॉर्ड देखो, हमारा जो कबीला देखो, हमारा फलसफा देखो, बादशाह खान के दौर से इससे पहले हम लड़े हैं और हम लड़ते रहेंगे। जैसे अफगानिस्तान में 52 ममालिक को पुश्तूनों शिकस्त दिया, तो आज वो मुंह के मारे भाग के रीशन टोटे टोटे हो गया, वैसा पाकिस्तान को हम टोटे करने नहीं देंगे। हम असीम मुनीर साहब को एक दफा फिर मुखातिब होकर कहते हैं कि हमको हमारा खान चाहिए पूरा पाकिस्तान को। और हमारे मैशियत देखो, आज हर एक बच्चा आज जो पैदा हुआ 3,37,152 रुपये का वो मखरूज होता है। तो हम तो चलो इसने इमरान खान को हटाया कि महंगाई कम होगा, हालात खराब है, इसलिए ऐसा कि 150 रुपये में पेट्रोल का लीटर था, तो मौलाना डीजल उछल के उधर इस्लामाबाद में अपनी वो अटखंडों के साथ पहुंच गए। आज किधर है डीजल? आज पेट्रोल 300 को पहुंच गया, आपका सोना 400 के 4 लाख के लगभग तोला हो गया, कोई नहीं उठता है। ये पुश्तूनों के साथ जुल्म है और हम इंशाल्लाह इस जुल्म को खत्म करके रहेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। क्या लगता है कि जो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में इनकलाब आते रहे, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ का जुल्म भी उन लोगों से ज्यादा है, तो फिर यहाँ इनकलाब क्यों नहीं आ सकता? देखो, नेपाल की जो आर्मी है, नेपाल की जो कानूनियत जो सिस्टम है, इसमें अपने बंदों को कोई नहीं मारता। इंसानी हुकूक उधर मौजूद है, इधर कोई पूछने वाला है। इधर हमको अगर मारे, इधर कुचल ले हमारे बच्चों को, कोई पूछने वाला नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे पता है कि आखिरी नंबर जो है पाकिस्तान को, अगर वो खूनरेजी वो फिर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यानी जब हम तंग हो गए ना, तंग शीनों पर जंग हुए, ये पश्तून इसको नहीं लकारना। आखिरी हरबा ये होगा ना, बांग्लादेश भी भूल जाएगा तू नेपाल भी भूल जाएगा और तू श्रीलंका को भी भूल जाएगा। मुझे अल्लाह से ही उम्मीद है कि बहुत जल्द इमरान खान रिहा होगा इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो जलसा हो रहा है ना, ये हमें पहले पे पता था, ये कामयाब हो चुका है, जलसा तो कामयाब हो चुका है। लेकिन हमारी अहमियत बात ये है ना, अहम बात ये है कि हमारी लीडरशिप जो है ना, अपने आपस में जो नाराजगी रखती है ना, यार तुम ये नाराजगी अपने पास रखो, अपने घर में रखो, हमारी खान को रिहा करो। यार तुम्हारे पास फैसिलिटीज है, वसाइल है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन निकलो यार, खान की खातिर निकलो। हमें बार बार कहते हो, मैं गलिया गंडापुर से पूछता हूँ यार, अवाम निकलते हैं, जलसों की निकलते हैं, अपने पैसे भी लगाते हैं, रात दिन एक होकर वहाँ पे इस्लामाबाद भी जाते हैं, लाहौर जाते हैं आपके पास, लेकिन आप कुछ नहीं करते। आप रात को एक बात करते हो, जब सुबह हो जाते तो दूसरी बात ही करते हो। अवाम तो रोज भी तैयार होती है, रात को भी तैयार होती है, लेकिन आप कुछ करो यार। और हमें भी पता है कि अगर आप एक हो जाए ना, तो इमरान खान कल रिहा हो जाएगा, लेकिन आप एक नहीं होते। कल अगर देखते शेर अफजल मरवत नाराज होता है, अगर वो खुश हो जाते हैं, तो वहाँ अलीमा खान उसकी बहन नाराज हो जाते हैं, ये नाराजगी खत्म नहीं होती। 2 साल इसमें गुजरे यार। अगर आपने खान को रिहा करनी है ना, तो एक हो जाओ तो खान कल रिहा हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे वसाइल यार। पख्तून है कि पख्तून सिर्फ अमन चाहते हैं, पख्तून आजादी चाहते हैं, वो कुछ नहीं चाहते यार। वो ना आपसे नौकरी चाहता है, ना कुछ और चाहते हैं, ना गाड़ियां चाहते हैं। आपके पास आपकी गाड़ी भी आपको मुबारक हो, आपको सारी सब कुछ हो रहा है यार, लेकिन खान को रिहा करो। बस एक ही मुतालबा है लोगों का, अगर आप लोग खुशहाली देखना चाहते हो ना अपनी अपने मुख्तलिफा में, अगर अमन देखना चाहते हो ना, तो इमरान खान, अगर इमरान खान रिहा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तरक्की भी आएगा, खुशहाली भी आएगा, अमन भी आएगा। जब आपके सूबे में अमन हो तो खुशहाली भी हो, तरक्की भी हो, कारोबार भी हो, अमन भी हो। लेकिन अमन ना हो ना तो कुछ ना हो। मेरे पख्तून सुबह भी निकलते हैं, रात को निकलते हैं, कितने मुश्किल हम पर आए, लेकिन फिर भी ये लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। कितने जलसे हमारे हुए, एक भी हमारी जलसा ना कामयाब नहीं हुआ, सारी कामयाब हुए। लेकिन ये लोग अली अमीन, ये जितनी हमारी लीडरशिप है, ये अभी तक कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इन एक नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पर ही है। अगर ये एक हुए तो खान कल रिहा होगा। ये मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं कसम खाता हूँ ना कि अगर ये लोग एक हुए ना, तो इमरान खान रिहा होगा। इमरान खान जब तक रिहा नहीं हुआ, ये लोग जब तक एक नहीं होंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।